So very good evening, all the participants. Today we'll start with part 3. So let me share my screen with you. So this is part 3. ठीक है जी, चलिए अब आप मुझे बताइए कि व्हाट यू हैव टू रीड इन पार्ट 3। पार्ट 3 अगर आपको पढ़ना हो तो क्या क्या पढ़ना है, सुनीता जी आप बताइए। आपको पार्ट 3 पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट 3 में पढ़ेंगे क्या क्या आप? सेक्शन 78 में एप्लीकेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद उसका प्रोसीजर्स। नहीं, कोड हो गया, प्रोस कोड पढ़ लेंगे, मतलब इन हाँ जी। नटशेल कोड पढ़ लेंगे। कोड के अलावा भी कुछ पढ़ना है? डेफिनेशंस। नहीं, वो तो सब कोड में आ ही गया ना, वो तो सेक्शन में आ ही गए। सेक्शंस के अलावा क्या पढ़ना है विमल देसाई जी? व्हाट वी हैव टू रीड while understanding part 3 besides the sections which are given in the code? सर वो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स रूल्स Right. एंड द रेगुलेशन सर. Right. So we have to read besides the sections the rules and regulations. Rules are different for insolvency and then for bankruptcy. So there are two types of rules: insolvency related and then bankruptcy related. Similarly, regulations are also there: insolvency related regulations and then bankruptcy regarding regulations. So 78 talks of applicability, and they say this part shall apply relating to fresh start, insolvency and bankruptcy of individuals and partnership firms where the amount of default is not less than 1000 rupees. So amount of default is also necessary. It should not be less than 1000 rupees. Provided that the central government may by notification specify the minimum amount of default of higher value which shall not be more than 1 lakh rupees. So now you have to tell me whether the central government has issued any such notification for part 3. Yes, Vimal ji? Any टू माय notification for नॉलेज part? सर नहीं नहीं हुआ ना सर अभी There is तक. no such notification. So the minimum amount of default is 1000 rupees only. And it shall apply to matters related to fresh start, insolvency, and bankruptcy. So three types of processes are there, and they may ask you case studies on either of these processes. So they may ask you a case study on fresh start, they may ask you a case study on insolvency, they may ask you a case study on bankruptcy, or a mixture of these, right? Now 79, section 79. Section 79, it says, in this part, unless the context otherwise requires, adjudicating authority means the debt recovery tribunal constituted under subsection 1 of section 3 of RDB Act. So it says the adjudicating authority is for this part debt recovery tribunal. Now this section 79 has to be read with section 60. In section 60 also, we saw the provisions relating to jurisdiction. And they say that jurisdiction, section 60, subsection 1, if we read, it says the adjudicating authority in relation to insolvency resolution and liquidation for corporate persons, including corporate debtors and personal guarantors thereof, shall be NCLT. So, it shall be in case you are an individual or you are a partnership firm and you have given a guarantee for a corporate loan. So, in that case, what shall be the jurisdiction? एनसीएलटी सर. NCLT. Right. And if you are an individual, you have taken loan in the individual capacity, then the adjudicating authority shall be DRT. Now, you have to read section 179 also. And what 79 says? What 179 says? Section 179, if you read, it says adjudicating authority for individuals and partnership firms. So it says subject to the provisions of section 60. So I'll take you to section 179 also. Just a minute.
Section 179. So this is section 179. And what section 179 says? Section 179 says that adjudicating authority for individuals and partnership firms. It says subject to the provisions of section 60. So we have to read three sections: section 78, section 60, and section 179 to develop a combined understanding. So it says subject to the provisions of section 60, the adjudicating authority in relation to insolvency matters of individuals and partnership firms shall be the debt recovery tribunal, having territorial jurisdiction over the place where the individual debtor actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, and can entertain an application under this code regarding such person. Okay. So we have to read all these sections together. Okay. Now let us go back to section 78. So this is section 78. ये हो गया 79. 79 में adjudicating authority, now you know. Now associate of the debtor. Like in case of corporate persons, there is a definition of related party. Similarly, here there is a concept of associate. An associate shall be required at the time of filing of the application by the debtor. Suppose the guarantor is filing the application, then he has to disclose his associates. And if the creditor is filing the association, if creditor is filing the application, then if he knows that these are the associates, so he has to disclose. Associate of the debtor means a person who belongs to the immediate family of the debtor. Now, what is the meaning of immediate family? Immediate family. This is spouse, dependent children, dependent parents. Right. Now, suppose spouse is working, then? She will be included, sir. Yes. उसमें dependent या non-dependent. Right. So, in case of spouse, there is no distinction whether she is working or not. So, spouse shall be invariably included in associates. Then dependent children. So, if the children are independently working, they are independently earning, so they are not included. And dependent parents. Similarly, parents also, if they are independent, if they are having their independent source of income, they are also not included. So, this is the definition of immediate family, right? Now, a person who belongs to the immediate family of the debtor. This we have seen. अब आपको क्या करना है? नोट्स बना लेने साथ साथ में. नोट्स में क्या लिख देना है आपको? अब जैसे आपने ये पढ़ा सेक्शन 79 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसके साथ में लिख दो सेक्शन 179, सेक्शन 60. इस तरह से आपको अपना अपनी वर्किंग करते रहना साथ में. ठीक है. एसोसिएट हो गया ए पर्सन हु इज ए रिलेटिव ऑफ द डेटर और ए रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर. ठीक है. अब यहां रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? Relative of the debtor or relative of the spouse of the debtor. So the definition of relative is given in section 5 subsection 24 capital. वहां 524 कैपिटल ए में डेफिनेशन दे रखा. और मैंने एक चार्ट भी दिया था आपको मेरे हिसाब से, है ना? एक चार्ट दिया था ना 524 ए वाला, ग्रुप में डाला होगा मेरे हिसाब से. अगर नहीं डाला तो मैं चार्ट भी डाल दूंगा, उसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो रिलेटिव ऑफ द डेटर और रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर. ठीक है. ए पर्सन हु इज इन पार्टनरशिप विद द डेटर. ठीक है. अगर पार्टनरशिप है तो भी. अब कोई पूछ सकता है भाई ज्वाइंट वेंचर होगा तो क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर है क्योंकि वो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता जो यहां लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ वही पूछता है. अगर वो कह देगा दे आर वर्किंग इन ए ज्वाइंट वेंचर, तो क्या कहोगे आप? तो पार्टनरशिप तो आपने पढ़ा हुआ, ज्वाइंट वेंचर तो पढ़ा नहीं. एसोसिएट में इंक्लूड होगा वो भी है. आगे देख लेते हैं. ए पर्सन हु इज ए स्पाउस और रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन with But whom there is a provision with regard to business persons or business partners. That's what somewhere it is mentioned, business partners. So that would include even joint venture, no, sir?
Wow. A person who is a spouse or a relative of any person with whom the debtor is in partnership. A person who is employer of the debtor or employee of the debtor. ये सारे एसोसिएट्स के अंदर आ जाएंगे. चलिए. अच्छा, अब ये ट्रस्ट वाला एक. ट्रस्ट में क्या है? एक मिनट, एक लाइन इसमें मिसिंग लग रही है ना. हम्म. तो ट्रस्ट में है ये a person who is a trustee of a trust in which the beneficiaries of the trust include a debtor or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? ये कहता है ए पर्सन who is a trustee of a trust in which the beneficiaries of the trust include a debtor. और ये पॉइंट है आपका एक पॉइंट. अब इसका मतलब बताइए आप, इसका मतलब क्या है? ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट, इसको एग्जांपल से समझाइए पूजा जी. इसको आप एक एग्जांपल से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है मतलब इसका. ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट in which the beneficiaries of the trust included debtor or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. तो तो इसके या तो वो जो डेटर है या तो वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज में आ रहा हो किसी ट्रस्ट में, या ट्रस्टी के पास ऐसी कोई पावर्स हो जो कि डेटर के बेनिफिट के लिए वो एक्सरसाइज कर सकता हो. एक ट्रस्ट तो है, उस ट्रस्ट में ये लिखा हुआ है कि देखो जी ऐसा है, 1 लाख रुपए इसको इस ट्रस्ट से मिलते रहेंगे पर मंथ, जो भी ट्रस्ट की इनकम होगी. ठीक है, या फिर जो उसके बेनिफिशियरीज है उसमें ये डेटर इंक्लूडेड है. ठीक है, बेनिफिट, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो बेसिकली प्राइवेट ट्रस्ट के केस में होता है ये, कि प्राइवेट ट्रस्ट के केस में क्या होता है भाई, ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी कर दी और उससे इनकम मिलती रहती है बेनिफिशियरीज को. तो अगर बेनिफिशियरीज में इसका नाम है तो वो जो ट्रस्ट है और ये डेटर, ये दोनों एसोसिएट हो जाए. एसोसिएट्स. ठीक है, या फिर टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट ऐसी हैं जिसमें पावर है ट्रस्टी के ऊपर कि भाई उस पावर को वो डेटर के बेनिफिट के लिए एक्सरसाइज कर सकता है. तो उस केस में क्या होगा, वो जो ट्रस्ट है और ये जो डेटर है ये दोनों एसोसिएट हो जाए. ठीक है, ए कंपनी वेयर द डेटर और द डेटर अलोंग विद दिस एसोसिएट्स ओन्स मोर देन 50%. अब एसोसिएट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली. अब डेटर और जो डेटर है अलोंग विद एसोसिएट्स, इनकी सबकी शेयर होल्डिंग देख लो आप. If it owns more than 50% of the share capital of the company or controls the appointment of the board of directors of the company. ठीक है, and for the purpose of this subsection, relative with reference to any person means anyone who is related to another if they are members of HUF or one person is related to the other in such manner as may be prescribed. तो इसमें आपके पास रूल दे रखा है, रूल 4. और रूल 4 क्या ले जाता है आपको? रूल 4 आपको दोबारा ले जाता है सेक्शन 524A में. रूल 4 अगर आप खोलोगे तो रूल 4 में क्या लिखा हुआ है? रूल 4 में ये लिखा है कि भाई आप रिलेटिव की डेफिनेशन के लिए सेक्शन 524 कैपिटल ए में जाओ. ठीक है, रूल 4 आपको दोबारा 524 कैपिटल ए में ले जाता Sir, one question, sir. है. यस. Sir, in case of a guarantor, sir, if he has created a trust for the benefit of his children, right? राइट. And he's a guarantor for a corporate or a corporate person, and there is a claim made by the bank
towards his guarantee. And if that amount has been set for the in trust, can that amount also be considered as something that would be belonging to the debtor? Like, Actually, it says a person who is it. So first of all, what we have to see, there is a trust. First question, whether this debtor or the personal guarantor is a trustee of that trust. This is the first question. Second, yeah, assuming, sir, he's a trustee, sir. Consider that he has because these children are minors, and he has put that money in the trust. Maybe that money, other than his money, also there is some money that has come from his grandparents, from the children's grandparents, and it is for the future need of the children, like for future education or so. Actually, we have to see whether that person is a beneficiary or not. So first of all, whether he is a trustee, the answer is yes. So it will be included in the definition. It will be covered because otherwise क्या होगा, वो dependent children में cover हो जाएगा ना, immediate family में आ जाएगा. So you are presuming that the children are not independent; they are dependent. Yeah, They are getting some money. right. So a person who is a trustee of a trust in which the beneficiaries of the trust include a debtor. So beneficiaries are, one of the beneficiaries is a debtor. Or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. Company, debtor along with his associates owns more than 50%. Relative, you have to see section 524A. Now we click, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको 524A, तो 524A भी खुल जाएगा. ठीक है, ये मैंने लिंक किया हुआ है इसमें. ये सेक्शन 524A कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे ना आप, तो सेक्शन 524A खुल जाएगा. ये 524A है. ठीक है जी, इस तरह से. लास्ट नोट क्यों नहीं आता इसमें? लास्ट नोट आना चाहिए. चलो कोई बात नहीं आ रहा. दोबारा चलते हैं, कोई बार नहीं आता उसमें. Now in your question, more facts will be required, Vimal Desai ji. First is whether some money is being transferred. So if that money is transferred, so naturally the father will be controlling that bank account. So that will be covered. But in case it is being set aside for future purposes, so then he may not be covered. Yes, sir. The objects of the trust say that, all this money that has been put in for the beneficiaries, that is the minor children, it will be utilized for their education and their basic needs, like mainly for education. Then in that case, sir, whether this money can, in case of personal guarantee, whether the trust money could be used to discharge the amount towards Actually, the it will guarantee. depend. It will depend whether any money is being transferred from the trust to the debtor or the personal guarantor. If it is being transferred, then definitely it will be considered as an associate. But if the money is kept aside, okay, nobody can touch that money unless the children come of age, unless they become mature, unless they become adults. So then it may not be. So that will depend upon the facts of the case. Actually, the benefit should accrue because if presently some amount is being transferred, so naturally because the minors, the major will be controlling the account. Yeah, so definitely it will be included. Basically, sir, all these trusts, are mainly formed with the purpose that the minors will get the benefit of the income that may arise for their education and their basic needs, like, but mainly Right. for education. Right. But actually, if the purpose is otherwise, if the purpose of the trust is to keep the money away from the
say for from the benefit which may accrue to the creditors, so then it may be covered. So then it may be covered under the associates. So if suppose you have parked your money in the trust and you say that okay, monthly I'll be getting this much from the trust, so then that trust will become an associate. Yes. Okay, sir. Bankrupt. Bankrupt means a debtor who has been adjudged as bankrupt by a bankruptcy order. Now, there is a difference between bankrupt and discharged person. Bankrupt means a person against whom a bankruptcy order has been made. That means bankruptcy has commenced. But if the bankruptcy has concluded, whatever was to be recovered has been recovered. So in that case, he is not known as bankrupt, he is known as a discharged person. He is as good as an ordinary person if the bankruptcy proceedings have concluded. So adjudged as bankrupt means that a bankruptcy order has been issued, bankruptcy proceedings have commenced. This is the meaning. Each of the partners of a firm where a bankruptcy order under section 126 has been made against a firm, right? Any person adjudged as an undischarged insolvent. So if there is an adjudication, there is an order that okay, insolvency proceedings have commenced, so then that person will be included under the definition of bankrupt. Bankruptcy means the state of being bankrupt. Bankruptcy debt. So bankruptcy debt in relation to a bankrupt means any debt. So this we can read later on. When we read the provisions regarding the bankruptcy, more important are excluded assets and excluded debt. Now, what is this excluded assets? And if we read it carefully, this subsection 14, sometimes it includes both the debtor or the bankrupt. Like in A, it is including both the debtor and the bankrupt. In B, it is including not only the bankrupt but his family also. In third, he is including the debtor or his immediate family. And fourth, he is saying debtor or his immediate family. So accordingly, we have to read. Excluded assets. So there could be certain assets which may be excluded. Now what is the idea? Because here we are dealing with individuals. So you cannot say कि भैया अपने घर के बर्तन भी हमें दे दो, ठीक है, सोफा सेट भी हमें दे दो, फ्रिज भी हमें दे दो, वो नहीं है. इसीलिए कुछ ने क्या क्या, बट दे शुड बी, फर्स्ट थिंग इज दे शुड बी अनएनकम्बर्ड. देखो, ऑल स्टार्ट्स विद अनएनकम्बर्ड. अनएनकम्बर्ड होने चाहिए. अगर एनकम्बर्ड है, आपने लोन लिया हुआ है, तो वो ले जाएंगे. फिर चाहे कुछ भी हो. आपने रेफ्रिजरेटर ले रखा है, आपने उस पर लोन ले रखा है, तो वो ले जाएंगे. टीवी होगा तो भी ले जाएंगे. ठीक है. पहली बात, अनएनकम्बर्ड होना चाहिए. और अनएनकम्बर्ड में क्या है? टूल्स, बुक्स, व्हीकल्स, व्हीकल्स लिखा है, ठीक है, एंड अदर इक्विपमेंट एज आर नेसेसरी. नेसेसरी भी जरूरी है टू द डेटर और बैंकक्रप्ट फॉर हिज पर्सनल यूज और फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन. ठीक है. अब आपने लग्जरी कार्स ले रखी हैं, तो क्या वो इंक्लूडेड होंगी या नहीं होंगी? दैट डिपेंड्स. एज आर नेसेसरी, आपको नेसेसिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना. अनएनकम्बर्ड भी होना चाहिए. सेकंड, और क्या लिखा है? पर्सनल यूज. यहां पर फैमिली वाला कवर नहीं है. देखो, पर्सनल यूज और फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन. तो पहले में क्या ध्यान में रखना है आपको? यहां पर क्या कवर्ड है? डेटर और बैकग्राउंड फॉर हिज पर्सनल यूज और फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन. अगर आपकी वाइफ के पास कोई कार है, वो इंक्लूडेड नहीं है. अनएनकम्बर्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्रोविजंस, ठीक है, एज आर नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग द बेसिक डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द बैंकक्रप्ट एंड हिज इमीडिएट फैमिली. ठीक है. जो भी नेसेसरी है फॉर सेटिस्फाइंग द बेसिक डोमेस्टिक नीड्स, ठीक है, ऑफ द बैंकक्रप्ट एंड हिज इमीडिएट फैमिली. सेकंड में क्या आ गया? बैंकक्रप्ट के अलावा उसकी इमीडिएट फैमिली भी आ गई. ठीक है. थर्ड, एनी अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स ऑफ सच वैल्यू एज में बी प्रेस्क्राइब्ड. और वैल्यू कितनी प्रेस्क्राइब्ड है? 1 लाख ऑफ द डेटर और हिज इमीडिएट फैमिली विच कैन नॉट बी पार्टेड विद इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज. कोई आपके पास कोई पूजा के लिए आइडल है, ठीक है, कोई मंगलसूत्र है, ये सब चीजें जो इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज विच डेटर और हिज इमीडिएट फैमिली में रिक्वायर, तो उस केस में
ये, और अनएनकम्बर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास गोल्ड है आपने उसके ऊपर लोन ले रखा, और वैल्यू कितनी है, 1 लाख ओनली। ठीक है। एनी अनएनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पेंशन प्लान टेकन इन द नेम ऑफ डेटर और हिज इमीडिएट फैमिली and an unencumbered single dwelling unit owned by the debtor of such value as may be prescribed। तो रूल 5 है। रूल 5 क्या बोलता है कि इन केस ऑफ रूरल एरिया इट इज 10 lakhs, इन केस ऑफ अर्बन एरिया इट इज 20 lakhs। ठीक है। तो ये हमारे हो गए एक्सक्लूडेड एसेट्स। एक्सक्लूडेड एसेट्स का सिग्निफिकेंस कहां पर आएगा? सिग्निफिकेंस वहां पर आएगा जहां पर आपको कुछ रीपेमेंट करनी है या फिर बैंक्रप्सी के केस में। ठीक है। एक्सक्लूडेड डेट, एक्सक्लूडेड डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और एक्सक्लूडेड डेट का मतलब क्या है? एक्सक्लूडेड डेट का मतलब ये है कि भाई चाहे इंसॉल्वेंसी हो चाहे बैंक्रप्सी हो, बैंक्रप्सी के बाद भी यू विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम दीज डेट्स। ठीक है। लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल। आपकी बैंक्रप्सी स्टार्ट हो गई, बैंक्रप्सी कंक्लूड हो गई, जो भी एसेट्स थे सारे बेच बाच दिए, बट आप जिंदा तो हो ना। जब जिंदा हो तो आप कमाओगे कुछ ना कुछ। तो ये जो लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल है, ये डिफरेंट है। इसका इस डेट से कोई मतलब नहीं है। बैंक्रप्सी के बाद भी यू विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ डेट्स, एक्सक्लूडेड डेट कहते हैं। लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है। लाइबिलिटी इन रिलेशन टू स्टूडेंट लोन एंड एनी अदर डेट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये सारे जो है आपके एक्सक्लूडेड डेट के अंदर आएंगे। अब वहां पर वो क्या लिखता है, जैसे चाहे फ्रेश स्टार्ट हो, चाहे इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी हो, चाहे बैंक्रप्सी, वो वर्ड लिखता है क्वालिफाइंग डेट्स। ठीक है। और क्वालिफाइंग डेट्स में क्या कहता है वो? क्वालिफाइंग डेट्स में कहता है कि दिस डज नॉट इंक्लूड एक्सक्लूडेड डेट। ठीक है। फर्म, फर्म मीन्स a body of individuals carrying on business in partnership whether or not registered, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है। इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर मीन्स स्पाउस। सो स्पाउस में कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। पार्टनरशिप डेट मीन्स ए डेट फॉर विच ऑल द पार्टनर्स इन ए फर्म आर जॉइंटली लायबल। ऐसा भी हो सकता है ना कि पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने इंडिविजुअल अपना कोई पर्सनल लोन ले रखा है, तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा फिर। ठीक है। पार्टनरशिप डेट में क्या इंक्लूडेड होगा? वही सिर्फ होगा इंक्लूड जिसमें सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल है। क्वालिफाइंग डेट, qualifying debt means amount due which includes interest or any other sum due in respect of the amounts owed under any contract by the debtor for a liquidated sum। क्या लिखा? covered under, owed under any contract। ठीक है। for a liquidated sum, liquidated sum मतलब liability is ascertained either immediately or at a certain future time and does not include, क्या इंक्लूडेड नहीं है? एक्सक्लूडेड डेट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो अगर आप डिस्चार्ज भी होगे तो किससे डिस्चार्ज होगे? क्वालिफाइंग डेट्स। ए डेट टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड, अगर कोई आपने सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है तो उससे भी डिस्चार्ज नहीं होगे आप। सिक्योर्ड लोन क्यों भाई? बिकॉज वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके राइट्स डिफरेंट है। आपने उसको पहले से ही सिक्योरिटी दे रखी है, अब उसकी मर्जी है कि भाई वो आप रीपेमेंट प्लान में पार्टिसिपेट करे नहीं करे, है ना। वोटिंग राइट तो उसको वैसे भी नहीं है। तो इस तरह से डेट टू द जब तक वो रिलिंक्विश ना करे, एंड एनी डेट विच हैज बीन इनकर्ड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अगर आपने कोई डेट ले लिया है 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अब ये फ्रेश स्टार्ट क्या होता है? फ्रेश स्टार्ट में बेसिकली ये है कि भाई आप मौज करो, आपको कुछ नहीं देना। ठीक है। फ्रेश स्टार्ट बड़े लिमिटेड लोगों के लिए है जिसकी इनकम, एसेट्स या लाइबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान मीन्स ए प्लान prepared by the debtor in consultation with the resolution professional। अब देखो ऐसा है, आप इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हो, इंडिविजुअल के लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान तो आएगा नहीं, है ना। कॉर्पोरेट्स के लिए तो रेजोल्यूशन प्लान आता है। यहां पर क्या है? यहां रीपेमेंट प्लान बनेगा, और रीपेमेंट प्लान भी कौन बनाएगा? डेटर ही बनाएगा। ठीक है। ऑफ कोर्स क्रेडिटर्स हैव टू एग्री, लेकिन क्रेडिटर की एग्रीमेंट के बाद भी इसको भी एग्री करना है, क्योंकि इसी को पता है ना पैसे कहां से लाएगा ये।
ठीक है। अब रीपेमेंट प्लान के लिए क्या ये बोरो कर सकता है? द आंसर इज यस, बोरो कर सकता है भाई। रिलेटिव से बोरो कर ले कि भाई मेरे को रीपेमेंट, क्योंकि अगर रीपेमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा? बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाएगी। और बैंक्रप्सी इज ए ब्लॉट, तो बैंक्रप्सी तो कोई चाहता नहीं है ना? तो वो कोशिश करेगा रीपेमेंट करने की। तो रीपेमेंट प्लान में ये खुद ही बता देगा कि देखो जी ऐसा है, मैं 2 साल के अंदर पैसे दे दूंगा इस तरह से। ठीक है। prepared by the debtor in consultation with the resolution professional under section 105 containing a proposal to the committee of creditors for restructuring of his debts or affairs। ठीक है। तो रिस्ट्रक्चर हो जाते हैं डेट्स में कि भाई देखो जी 18% इस पे इंटरेस्ट है, मैं 18 तो नहीं दे सकता, मैं 12% दे सकता हूँ। ठीक है ना? इस तरह से। Resolution professional means an insolvency professional appointed under this part as a resolution professional for conducting the fresh start process or insolvency resolution process। ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये आ गया आपका फ्रेश स्टार्ट के लिए या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। अब आप पूछोगे जी बैंक्रप्सी के लिए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैंक्रप्सी के लिए वर्ड वहां यूज किया गया बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है। और अनडिस्चार्ज बैंक्रप्ट मीन्स ए बैंक्रप्ट हु हैज नॉट रिसीव्ड ए डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सेक्शन 138। तो अनडिस्चार्ज बैंक्रप्ट कौन है? अनडिस्चार्ज बैंक्रप्ट मींस बैंक्रप्ट हु हैज नॉट रिसीव्ड ए डिस्चार्ज ऑर्डर, मतलब आपके अगेंस्ट में बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन कल्मिनेट नहीं हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अब हम चलते हैं फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस पर। फ्रेश स्टार्ट में क्या है? फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ये कहता है, फ्रेश स्टार्ट में पहले 2-4 बातें बताओ आप मेरे को। पहले तो ये बताओ, क्या डिफॉल्ट होना जरूरी है फ्रेश स्टार्ट के लिए या नहीं? फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन लगाने के लिए क्या डिफॉल्ट होना जरूरी है या नहीं? यस सर। यस। ठीक है। ए डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट एंड फुलफिल्स द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ये नजर आ रही होगी ना स्क्रीन आपको? यस सर, आ रही। हाँ। फॉर ए फ्रेश स्टार्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट। देखो क्या वर्ड लिखा उसने? क्वालिफाइंग डेट। अब क्वालिफाइंग डेट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? Excluded debts, secured हाँ, debts, and the debt which has been taken 3 months within राइट, the प्रायर date टू of द डेट ऑफ application. मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। ये फ्रेश स्टार्ट के लिए क्या क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है या सिर्फ डेटर ही अप्लाई कर सकता है? Sir, only data, na Only sir. Only only debtor, debtor. right? So a debtor may apply either personally or through a RP for a fresh start under this chapter। क्या होना चाहिए? एक तो ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 60,000 रुपीज। ठीक है। जो इसकी ग्रॉस एनुअल इनकम है ये 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। वर्ड क्या लिखा है? एग्रीगेट। एग्रीगेट वैल्यू लिखा है। ठीक है। तो जो भी टोटल उसके पास एसेट्स हैं, अब यहां पर उसने एक्सक्लूडेड एसेट्स वगैरह की बात नहीं करी। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या एग्रीगेट वैल्यू में एक्सक्लूडेड एसेट्स भी आ जाएंगे? द आंसर इज यस। एग्रीगेट वैल्यू बोलता है इट डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। अब आप सोचोगे ऐसा आदमी कौन होगा जिसकी 60,000 रुपये साल की इनकम होगी, या 20,000 रुपये से ज्यादा के एसेट्स नहीं है, या जो क्वालिफाइंग डेट्स है वो चलो 35,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है। ठीक है। ही इज नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट। ही डज नॉट ओन ए ड्वेलिंग यूनिट इरिस्पेक्टिव वेदर इट इज एनकम्बर्ड और नॉट। उसके पास मकान भी नहीं है। ठीक है। ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और बैंक्रप्सी प्रोसेस इज नॉट सबसिस्टिंग अगेंस्ट हिम। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एंड नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर हैज बीन मेड in relation to him in the preceding 12 months of the date of the application for fresh start। तो क्या कहता है कि आपका कोई फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस पहले नहीं हुआ है, फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर नहीं हुआ है। ठीक है। इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। अब इस पर कई बार सवाल पूछ लेता है। इस पर सवाल क्या पूछेगा? वो कहेगा जी फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन उसने लगाई थी लेकिन विड्रॉ कर ली, तो क्या वो 12 महीने में दोबारा एप्लीकेशन लगा सकता है? तो इसमें ऑर्डर की बात हो रही है ना? हाँ। इसमें क्या कहता है? ये कहता है ऑर्डर, ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर नहीं हुआ तो लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर, सेक्शन 81। When an application is filed under section 80 by a debtor
एन इंटरिम मॉरेटोरियम, यहां पर चाहे आपका फ्रेश स्टार्ट है, चाहे इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है, दोनों में कॉन्सेप्ट इंटरिम मॉरेटोरियम की है। ऐसी कोई कॉन्सेप्ट हमने कॉर्पोरेट में नहीं पढ़ी। वहां पर क्या सीधा मॉरेटोरियम है, यहां पर क्या है, इंटरिम मॉरेटोरियम है। ठीक है। An interim moratorium shall commence on the date of filing of said application in relation to all the debts and shall cease to have effect on the date of admission or rejection of such application as the case may be। ठीक है। अब जब एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, डेटर एप्लीकेशन अगर फाइल कर देगा तो इंटरिम मोरेटोरियम लग जाएगा। और इंटरिम मोरेटोरियम क्या होगा? ड्यूरिंग द इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड एनी लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड। तो अगर कोई भी लीगल एक्शन है या कोई लीगल प्रोसीडिंग है तो वो स्टे हो जाएगी। एंड नो क्रेडिटर शैल इनिशिएट एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट। ठीक है। अब इसका भी कई लोग फायदा उठाते हैं। ये जो लिखा, वो कह रहा है भाई कोई लीगल एक्शन या कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अब इसके अगेंस्ट में आपने सेक्शन 14 में क्या पढ़ा था? सेक्शन 14 में आपने पढ़ा था, अगर हम सेक्शन 14 दोबारा खोलें तो सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 बोलता है भाई कंपनी के अगेंस्ट में मॉरेटोरियम लग जाएगा, बोलता है ना सेक्शन 14। लेकिन क्या पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में मॉरेटोरियम लगेगा? अगर कंपनी की सीआईआरपी शुरू हुई है, सीआईआरपी हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर, ए पर्सन हैज गिवन ए गारंटी, सो वेदर प्रोसीडिंग्स कैन स्टार्ट अगेंस्ट पर्सनल गारंटर। यस सर। हाँ, क्योंकि सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 बोलता है कि the provisions of subsection 1 shall not apply to a surety in a contract of guarantee to a corporate debtor। मतलब क्या कि कंपनी के केस में, अगर कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी शुरू हुई तो गारंटर के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो। लेकिन उसका फायदा यहां उठा लेते हैं लोग इंटरिम मोरेटोरियम। कैसे? भाई डेटर अपने आप एप्लीकेशन लगा दे। ठीक है। ये तो फ्रेश स्टार्ट पढ़ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी में भी ऐसा ही है। अब मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन है, मतलब इसको प्लानिंग के लिए भी यूज करते हैं लोग, कि कंपनी की सीआईआरपी उसको पता है शुरू हो गई, अब उसने अपने आप ही एप्लीकेशन लगा दी इंसॉल्वेंसी की। अपने आप इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा देगा तो क्या फायदा होगा कि जो उसने इंटर गारंटी दे रखी है उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हो सकता। अपने आप भी तो एप्लीकेशन लगा सकता है ना। अब यस वो सर। रीपेमेंट होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन उसको टाइम तो मिल गया ना। इमीडिएटली तो एक्शन उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं हो सकता ना। एक कंपनी ने लोन लिया, डायरेक्टर ने गारंटी दे रखी है, गारंटी में क्या है, उसका मकान मॉर्टगेज है। ठीक है। अब उसको पता चला कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई, अब वो क्या अपने आप ही एप्लीकेशन लगा देता है इंसॉल्वेंसी की। अपने आप जो अगर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा देगा तो क्या होगा? इंटरिम मॉनिटरिंग हाँ, शुरू। इंटरिम मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इंटरिम मोरेटोरियम स्टार्ट हुआ, सरफेसी में भी कोई एक्शन नहीं हो सकता, इस तरह से। ठीक है। चलिए, द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8, तो हम अगर मिला जुला के चीजों को पढ़ते हैं ना तो बड़ी अच्छी समझ में आता है हमारे को, है नहीं? द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 शैल बी इन सच Sir, फॉर्मेट only one मैनर। question, sir. यस प्लीज। During the lecture, sir, you asked, whether there has to be a default with regard to, and we said that in section 80 it says that he is not able to pay his debt. Now, in case, now when we are discussing this with regard to that section 14, sir, but there must be some proof now that he is not able to pay the debt. Suppose, sir, he has, how would he go and apply that he is an insolvent like? डिफॉल्ट, Some, huh? डिफॉल्ट। He will purposely make default, ऐसा? नहीं भाई, ऐसा है ना, वेन पर्पजली तो क्या होगा, पर्पजली नहीं है। Because, sir, when he will have सपोज to भाई क्या होगा, मान लीजिए आपने गारंटी इन्वोक हो गई उसकी। अब गारंटी इन्वोक होगी तो डिफॉल्ट तो हो गया ना। भाई बैंकर हैज गिवन ए लोन, ठीक है, बैंकर हैज गिवन ए लोन टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स इज ए गारंटर। अब कंपनी तो लोन नहीं दे रही,
तो उसने क्या किया, इसकी भी गारंटी इन्वोक कर दी। अब इसने जब गारंटी इन्वोक की तो ये तो डिफॉल्ट तो हो गया, इसका डिफॉल्ट हो गया, इसने एप्लीकेशन लगा दी। लगा सकता है ना एप्लीकेशन। जो मिस्टर एक्स है वो अपनी इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल कर देगा। जब इंसॉल्वेंसी पे आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। जस्ट ए थॉट। द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। ठीक है। तो क्या कोई आप आपके पास आ गए, कोई रूल्स आ गए इसके लिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए? नो सर। अभी फ्रेश स्टार्ट के कोई रूल्स आए नहीं है। ठीक है। फ्रेश स्टार्ट में सिर्फ सेक्शन ही है आपके पास, कोई रूल्स नहीं है। बट क्या आप केस स्टडी पूछ सकता है? केस स्टडी कई बार आ जाती है फ्रेश स्टार्ट में। ऐसा नहीं कि रूल्स नहीं है तो वो सेक्शन वाले क्वेश्चन बना देगा वो। ठीक है। द एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया, ये 80 का जो लास्ट पॉइंट है जी वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। The application under subsection 3 shall contain the following information supported by an affidavit। ठीक है। अब एप्लीकेशन जो लगानी है इसके साथ में क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन देनी है सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। उस एफिडेविट में क्या लिखेगा वो? एफिडेविट में जो ये राम कहानी लिख रखी है ना, ये वाली, ये सारी चीजें, ये लिखेगा ना वो, कि भाई मेरी इनकम कितनी है, मेरी वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है, ये सारा है ना, मेरे पास कोई मकान नहीं है, स्टार्ट प्रोसेस नहीं है, ये सारी बातें वो एफिडेविट में लिखेगा। ठीक है। ए लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड। अब यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया? ऑल डेट्स। तो चाहे एक्सक्लूडेड डेट हो, चाहे सिक्योर डेट हो, सारे डेट्स उसको देने हैं यहां पर। ठीक है। ये नहीं है कि एक्सक्लूडेड डेट नहीं देने हैं, उसको सारे डेट्स देने हैं, जितने भी ले रखे हैं उसने। वर्ड क्या यूज किया गया? ऑल डेट्स। अगर सिर्फ क्वालिफाइंग डेट्स की बात आ गई तो वर्ड क्वालिफाइंग डेट्स लिखा होगा वहां पर। ठीक है। जहां ऑल डेट्स है तो चाहे एक्सक्लूडेड है चाहे नहीं है, सारे देने हैं। लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड बाय द डेटर as on the date of the said application, along with the details relating to the amount of each debt, interest payable thereon, and the names of the creditors to whom each debt is owed। ठीक है। ये सारी चीजें इसको देनी है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द डेट्स एंड द रेट thereof stipulated in the contract। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द डेट्स, अगर उसने कोई सिक्योरिटी दे रखी है तो वो भी। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटर एंड इज इमीडिएट फैमिली। अब यहां पर क्या आ गया? इमीडिएट फैमिली। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देखो कि इमीडिएट फैमिली और एसोसिएट में भी फर्क है। ठीक है ना। तो ए पर्सन मे बी एन एसोसिएट बट ही मे नॉट बी कवर्ड अंडर इमीडिएट फैमिली। यहां इंफॉर्मेशन किसकी देनी है? डेटर एंड इज इमीडिएट फैमिली, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स है। ठीक है। उसमें पार्टनर पार्टनर सारे कुछ है एसोसिएट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटर एंड इज इमीडिएट फैमिली अप टू 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है। Particulars of the letters, personal details as may be prescribed, the reasons for making the application, particulars of any legal proceedings which to the debtor's knowledge has been commenced against him। ठीक है। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो वो भी आनी। The confirmation that no previous fresh start order under this chapter has been made in respect of the qualifying debts of the debtor in the preceding 12 months of the date of the application। ठीक है। इसको ये कंफर्म भी करना है कि नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स ऑफ द डेटर इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है। ये सारी चीजें उसको एप्लीकेशन में लगानी है। अभी एप्लीकेशन का फॉर्मेट आया नहीं है। ठीक है। 82 अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोस्टल। वेर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 इज फाइल्ड बाय द डेटर थ्रू ए आरपी। अब दो बातें होंगी, या तो आरपी के थ्रू फाइल होगी या इंडिपेंडेंटली फाइल होगी। अगर आरपी के थ्रू फाइल है तो क्या कंफर्म करेंगे कि भाई कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। ठीक है। एंड हु हैज सबमिटेड सच एप्लीकेशन एंड बोर्ड शैल कम्युनिकेट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन राइटिंग आइदर कंफर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट और रिजेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट। ठीक है। एंड नॉमिनेट ए रेजोल्यूशन प्रोस्टल सुटेबल फॉर द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है। अब बोर्ड रिजेक्ट भी कर सकता है ना। बोर्ड के पास अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो ही में रिजेक्ट और किसी दूसरे को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसने अपने आप ही फाइल की है
क्योंकि अपने आप भी फाइल कर सकता है ना। तो उस केस में क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगी विद इन 7 days टू नॉमिनेट, और बोर्ड नॉमिनेट कर देगा विद इन 10 days। एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर अपॉइंट द आरपी रिकमेंडेड और नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। ठीक है। और ये जो आरपी अपॉइंट होगा, इसको कॉपी दे दी जाएगी एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट। एक और बात ध्यान में रखने वाली है यहाँ पर, यहाँ कोई आईआरपी की कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, है ना, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ आरपी ही वर्ड यूज किया गया। ठीक है। इंटरिम मॉरिटोरियम तो है, लेकिन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाली कोई बात नहीं। अब ये क्या करेगा, अब ये रेजगारी वाले केस है, 1000 रुपए की लाइबिलिटी की बात आ रही है, तो ये क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन बाई आरपी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहती है भाई देखो पहले आप देख लो। ठीक है। जैसे स्कूल में होता है ना, एक मॉनिटर बना देते हैं और एक होता है फिर क्लास टीचर, तो पहले मॉनिटर को ये जिम्मेदारी दे दी, आरपी को जिम्मेदारी दे दी तो भाई आप देख लो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटी वगैरह ये सब चीज। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, चाहे इंसॉल्वेंसी हो चाहे यहाँ फ्रेश स्टार्ट हो, दोनों में ही इसको रिपोर्ट देनी है। The resolution professional shall examine the application made under Section 80 within 10 days of its appointment and submit a report to the adjudicating authority, either recommending acceptance or rejection of the application. ठीक है। तो ये एप्लीकेशन एडमिशन या रिजेक्शन के लिए अपनी रिपोर्ट देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है। द रिपोर्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall contain the details of the amounts mentioned in the application which in the opinion of the resolution professional are qualifying debts। क्योंकि उसने क्या किया, उसने जब एप्लीकेशन लगाई उसने तो सारे डेट्स की डिटेल दे दी, है ना, हमने क्या पढ़ा था वहां, ऑल डेट्स। अब यहां पर क्या कर रहा है ये, यहां पर ये क्वालिफाइंग डेट्स को अलग से आइडेंटिफाई कर रहेगा आरपी। क्यों, क्योंकि क्वालिफाइंग डेट से ही डिस्चार्ज होना है आपको। अगर आपने जानबूझकर पिछले 3 महीने में कोई लोन ले लिया कि चलो मेरी छुटकारा तो होना ही है, मैं और लोन ले लेता हूं, ठीक है, तो 3 महीने वाला नहीं आएगा, सिक्योर्ड डेट नहीं आएगा इसमें। ठीक है। और एक्सक्लूडेड डेट नहीं आएंगे। तो क्वालिफाइंग डेट्स की ये बना देगा डिटेल। लाइबिलिटी इज एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज। ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कॉल फॉर सच फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेटर और एनी अदर पर्सन। क्या लिखा, डेटर और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन में कोई भी इंक्लूड हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है ना, कोई उसका ऑडिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हु इन द ओपिनियन ऑफ द आरपी मे प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। ठीक है। द डेटर और एनी अदर पर्सन एज द केस में बी शैल फर्निश सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिज्यूम दैट द डेटर इज अनेबल टू पे हिज डेट्स एट द डेट ऑफ द एप्लीकेशन इफ, क्या है पहला, दो तीन चीजें इसमें। पहला, in his opinion the information supplied in the application indicates that the debtor is unable to pay his debts। ठीक है। and he has no reason to believe that the information supplied is incorrect or incomplete, and he has reason to believe that there is no change in the financial circumstances of the debtor। हो सकता है जब एप्लीकेशन लगाई तब ना हो उसके पास इनकम, अब आ गई, केबीसी में नाम जीत गया, कुछ भी हो सकता है ना। enabling the debtor to pay his debts। The resolution professional shall reject the application if in his opinion the debtor does not satisfy the conditions specified under section 80। इस section 80 में conditions दे रखे हैं, और the debts disclosed in the application by the debtor are not qualifying debts। ऐसा भी हो सकता है कि सारे डेट्स दूसरे हों, सारे डेट्स जो है एक्सक्लूडेड डेट वाले हों, या सिक्योर्ड लोन हो, या फिर पिछले 3 महीने में लिए हों। क्योंकि यहां पर क्या, किससे डिस्चार्ज करना उसको, क्वालिफाइंग डेट्स। और the debtor has deliberately made a false representation or omission in the application or with respect to the documents or information submitted। ठीक है। The resolution professional shall record the reasons for recommending the acceptance or rejection of the application in the report to the adjudicating authority under subsection 1 and shall give a copy of the report to the debtor। ठीक है। तो अपने रीजंस देगा दोनों केस में, एक्सेप्टेंस में भी और रिजेक्शन में भी, और कॉपी किसको देगा, डेटर। ठीक है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आ गई रिपोर्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 दिन करना है। तो एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट
पास एन ऑर्डर आइदर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। ठीक है। और ऑर्डर में क्या लिखेंगे? ऑर्डर में लिखेंगे shall state the amount which has been accepted as qualifying debts। ठीक है, क्योंकि इसने क्वालिफाइंग डेट्स बताए थे अपनी रिपोर्ट में। बाय द आरपी एंड अदर अमाउंट्स एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 92 फॉर द पर्पस ऑफ द फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। ठीक है। ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर passed by the adjudicating authority along with a copy of the application shall be provided to the creditors mentioned in the application। तो जितने भी क्रेडिटर हैं उनको भी ये कॉपी दी जाएगी। ठीक। अब एक चीज और आप मिस कर रहे होंगे, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट की तो कोई बात की नहीं है ना। यहाँ कोई बात पब्लिक अनाउंसमेंट की नहीं हुई। ठीक है। तो जो भी क्रेडिटर है कौन बता रहा है? ये खुद ही बता रहा है। ठीक है, यही बता रहा है ना। यस सर। हाँ, ये कह रहा है कि भाई लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड, इंटरेस्ट पेबल, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी। और अगर वो कोई रीजन कोई पूछना चाहे तो उससे पूछ सकता। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि पब्लिक अनाउंसमेंट की भी कोई कॉन्सेप्ट है तो द आंसर इज नो। चलिए, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको कॉपी दे देंगे विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब ये एडमिट हो गई तो उसका क्या इफेक्ट है? ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द मॉरेटोरियम पीरियड शेल कमेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेट्स। ठीक है। तो सारे डेट्स के बारे में, चाहे सिक्योर्ड डेट हो, चाहे एक्सक्लूडेड डेट हो, ठीक है, चाहे डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड हो विद इन लास्ट 3 months, सभी पे मॉरेटोरियम लग जाएगा। ये ध्यान रखना। मॉरेटोरियम सिर्फ क्वालिफाइंग डेट्स पर नहीं लग रहा, सारे डेट्स पे लग रहा है। ठीक है। ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड एनी पेंडिंग लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड। अगर कोई पहले से प्रोसीडिंग चल रही है वो उस पर स्टे लग जाएगा। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 86 द क्रेडिटर शैल नॉट इनिशिएट एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट। ठीक है। लेकिन एक खास बात ध्यान में रखनी है, क्या है? ये जो प्रोसीडिंग है ये क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट है। ऐसा नहीं कि किसी का सिर फाड़ा है तो कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी उसके खिलाफ, ऐसा नहीं है। या कोई मर्डर कर दिया तो लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट। ठीक है। तो मॉरेटोरियम किसके लिए चल रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दी डेट्स। सिर्फ डेट के लिए हो रहा है मॉरेटोरियम, बाकी ये नहीं कि कोई और बाकी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। ठीक है, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स। During the moratorium period, the debtor shall not act as a director of any company or directly or indirectly take part on or be concerned in the promotion, formation or management of a company। ये सब काम नहीं कर सकता। ठीक है। Not dispose of or alienate any of his assets। ठीक है। Inform his business partners that he is undergoing a fresh start process। तो जितने भी उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, यहां पर क्या वर्ड लिखा? बिजनेस पार्टनर। पार्टनर ने लिखा तो बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दैट इज अंडरगोइंग ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म प्रायर टू एंटरिंग इनटू एनी फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ सच वैल्यू एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली। दैट इज अंडरगोइंग ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है। तो ये सिमिलर वर्डिंग इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में भी है, तो वहां पर 1 लाख है। यहां पर तो अभी नोटिफाई हुआ ही नहीं फ्रेश स्टार्ट के लिए। ठीक है। डिस्क्लोज द नेम अंडर विच ही एंटर्स इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शंस इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम इन द एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 84। कई बार क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रखी होती है ना, तो बिजनेस उस नाम से कर रहे होते हैं, तो वो नाम उसको डिस्क्लोज करना। ठीक है। ही कैन नॉट ट्रेवल आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। And the moratorium ceases to effect at the end of the period of 180 days, beginning with the date of admission, unless the order admitting the application is revoked। ठीक है। तो 180 days का इसमें पीरियड है मोरेटोरियम। ठीक है। नाउ सेक्शन 86। क्योंकि क्रेडिटर की लिस्ट किसने दी है? डेटर ने खुद ही दी है। क्रेडिटर तो इसमें एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकता, है ना। उसको एग्जामिन किसने किया है? आरपी ने। आरपी के एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया और उस ऑर्डर की कॉपी सारे क्रेडिटर्स को भी भेज दी। अब अगर क्रेडिटर को लगता है कि भाई दिक्कत है इसमें,
ठीक है। अब वो सोच रहा है उसमें तो एक्सक्लूडेड डेट में दे दिया, मेरा तो क्वालिफाइंग डेट्स में है, या क्वालिफाइंग डेट में ले लिया, मेरा तो एक्सक्लूडेड डेट में है। तो वो फिर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। और ऑब्जेक्शन भी किसके पास रेज करेगा? आरपी के पास, सीधा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाएगा ये। ठीक है। एनी क्रेडिटर मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 84 टू whom ए क्वालिफाइंग डेट इज ओड, ठीक है, में, क्योंकि आप डिस्चार्ज किससे कर रहे हो? क्वालिफाइंग डेट से कर रहे हो, तो क्वालिफाइंग डेट जिसका भी है वो ऑब्जेक्शन इसमें रेज करे। ठीक है। within a period of 10 days from the date of receipt of the order under section 84, object only on the following grounds. ऑब्जेक्शन के भी ग्राउंड्स दे रखे हैं। क्या? पहला, इंक्लूजन ऑफ ए डेट एज ए क्वालिफाइंग डेट। भाई वो कह सकता है भाई क्वालिफाइंग डेट में आपने इंक्लूड किया है तो क्वालिफाइंग डेट है ही नहीं, ये तो इसने 3 महीने पहले लिया मुझसे। ठीक है। इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, तो जो डिटेल्स है वो इनकरेक्ट है, अमाउंट ज्यादा है, कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सब। A creditor may file an objection under section 1 by way of an application to the RP। ठीक है। ये एप्लीकेशन लगाएगा किसके पास? आरपी के पास। The application under subsection 2 shall be supported by such information and documents as may be prescribed। अभी रूल्स तो आए नहीं। The resolution professional shall consider every objection made under this section। The RP shall examine the objections and either accept or reject the objections within 10 days of the date of application। ठीक है। वर्ड क्या लिखा? डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा, जो भी डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे 10 दिन। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल may examine any matters that appear to him to be relevant to the making of a final list of qualifying dates। तो हो सकता है उस लिस्ट में कुछ चेंज हो जाए। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन द आरपी shall prepare an amended list of qualifying dates and make an application to the adjudicating authority for directions under section 90 or take such other steps as he considers necessary in relation to the debtor। अब मान लीजिए क्रेडिटर ने ऑब्जेक्ट किया बट आरपी ने माना ही नहीं, तो क्रेडिटर के पास क्या ऑप्शन है? अब वो जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है। एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द आरपी, द डेटर और द क्रेडिटर हु इज एग्रीव्ड बाय द एक्शन टेकन बाय द आरपी अंडर सेक्शन 86 may within 10 days of such decision make an application to the adjudicating authority challenging such action on any of the following grounds। तो यहां पर भी ग्राउंड्स फिक्स है। क्या? पहला, भाई नो अपॉर्चुनिटी वाज गिवन, आरपी हैज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द डेटर और द क्रेडिटर टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब इसमें खास ध्यान रखिए, ये अप्लाई कौन कर रहा है? दोनों कर सकते हैं, डेटर या क्रेडिटर, क्योंकि वहां ऑब्जेक्शन किसने रेज किया था? सिर्फ क्रेडिटर ने क्रेडिटर। रेज किया था, है ना, 86 में। एनी क्रेडिटर, डेटर ने तो ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, लेकिन अपील का राइट किसको है? दोनों को है, डेटर भी और क्रेडिटर भी। ठीक है। The debtor or the creditor who is aggrieved by the action taken by the RP may within 10 days make an application to the adjudicating authority। पहला कि भाई देखो इसने क्रेडिटर की बात सुनी, मेरी तो बात सुनी नहीं, है ना, तो पहला। सेकंड, he has colluded with the other party or that the RP has not complied with the requirements of section 86। ठीक है। and adjudicating authority shall decide within 14 days। ठीक है। और अगर एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो क्या होगा? एक कॉपी इसकी बोर्ड को भी दे देंगे और बोर्ड आरपी के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकता है। नाउ 88, जनरल ड्यूटीज ऑफ डेटर। अब डेटर की क्या ड्यूटीज है? डेटर को नेचुरली जो भी इंफॉर्मेशन मांगे उसे देनी है उसको, है ना, ये है। द डेटर शैल मेक अवेलेबल टू द आरपी ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिज अफेयर्स, अटेंड मीटिंग्स एंड कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ द आरपी इन रिलेशन टू द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। Inform the resolution professional as soon as reasonably possible of any material error or omission in relation to the information or documents supplied to the RP or any change in financial circumstances after the date of application where such change has an impact on the fresh start process। ठीक है। तो अगर कोई उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गया, केबीसी में कोई अवार्ड मिल गया या उसके पास कोई प्रॉपर्टी आ गई, इस तरह से,
मान लो कोई उसका डिस्टेंट रिलेटिव है, उसका कोई लीगल हेयर ही नहीं है, और वो प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, तो इसको बताना है। ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, वेयर द डेटर और द क्रेडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द आरपी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 82 इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है। तो डेटर या क्रेडिटर फिर उसके इसमें क्या करेगा, एप्लीकेशन लगा सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर रिप्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर कोई कमेटी वगैरह तो है नहीं, है ना। तो डेटर या क्रेडिटर ही एप्लीकेशन लगा सकता है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन के अंदर ही विल मेक ए रेफरेंस टू द बोर्ड, और बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा, और फिर नए को अपॉइंट कर देंगे, नए वाला पुराने को सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है। सेक्शन 90, डायरेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। द रेजोल्यूशन प्रोविजनल में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस। भाई वो डेटर से कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, डेटर दे ही नहीं रहा, तो क्या होगा, तो जो आरपी है एप्लीकेशन लगाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। कंप्लायंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ना 85 में कि भाई ही कैन नॉट ट्रैवल ओवरसीज, ही कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। तो अगर वो कोई नॉन कंप्लायंस करता है तो ये एप्लीकेशन लगाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द रिटर्न, 88 में ड्यूटीज लगाई थी कि भाई सारी इंफॉर्मेशन इसको देनी है ना, चेंज इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बताना है। तो अगर वो कंप्लाई नहीं करता तो भी ये क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करे। ठीक है। The resolution provisional may apply to the adjudicating authority for directions in relation to any other matter under this chapter for which no specific provision have been made. ठीक है। अगर कोई बात नहीं लिखी है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पूछ लो। 91, रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन। अब ऑर्डर हो चुका है, एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, तो क्या ये ऑर्डर रिवोक हो सकता है? यस। किस किस चीज, पहला, अगर कोई फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया and debtor is ineligible for fresh start process, और non compliance by the debtor of the restrictions imposed। ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी उसका अगर वो वायलेशन करता है, रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं, वही टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट, ट्रैवलिंग ओवरसीज, है ना, इन्फॉर्मिंग बिजनेस पार्टनर वगैरह वगैरह। और इफ द रिटर इज एक्टेड इन मेलाफाइड मैनर एंड हैज विलफुली फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, 14 डेज के अंदर ये ऑर्डर डाल देगी, एडमिट और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। ठीक है। और मॉरिटोरियम खत्म हो जाएगा एंड कॉपी शैल बी प्रोवाइडेड टू द बोर्ड। 92 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसको छुटकारा मिलना 92 में, डिस्चार्ज ऑर्डर। क्योंकि क्वालिफाइंग डेट्स बना दिए, अगर कोई चेंज हुआ तो वो भी इंक्लूड हो गया। अब फाइनल लिस्ट बना देगा, क्योंकि 180 डेज का टाइम है ना। द रेजोल्यूशन प्रोविजनल शैल प्रिपेयर ए फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स एंड सबमिट सच लिस्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मॉरिटोरियम पीरियड कम्स टू एन एंड। ठीक है। तो बाई 173rd डे ये इसको लिस्ट बना देनी है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास ए डिस्चार्ज ऑर्डर एट द एंड ऑफ द मॉरिटोरियम पीरियड फॉर डिस्चार्ज ऑफ द डेटा फ्रॉम द क्वालिफाइंग डेट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट। ठीक है। अंडर सबसेक्शन 1। अब डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद भी क्या होगा, जो बाकी डेट्स है उसके, जो एक्सक्लूडेड डेट है वो रह जाएंगे, जो सिक्योर्ड लोन है वो रह जाएगा, एनी डेट कॉन्ट्रैक्टेड 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन वो बाकी रह जाएगा। ठीक है। ये किससे डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ क्वालिफाइंग डेट्स। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डिस्चार्ज द डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग लायबिलिटीज। ठीक है। ये लाइबिलिटी से भी डिस्चार्ज होगा। पहला, अगर कोई पेनल्टीज है, आपने कोई डेट ले रखा है उस पर पेनल्टी लग गई। ठीक है। तो अगर कोई भी पेनल्टी लगी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर, तो उससे भी डिस्चार्ज हो जाएगा। पहला, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल इंटरेस्ट अगर जो है वो भी हो जाएगा, उससे भी डिस्चार्ज हो। एंड एनी अदर सम्स ओड अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स from the date of the application till the date of the discharge order। कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, कुछ भी और सम है ना, उन सब से डिस्चार्ज हो जाएगा। द डिस्चार्ज ऑर्डर शेल नॉट डिस्चार्ज द डेटा फ्रॉम एनी डेट नॉट इंक्लूडेड इन सबसेक्शन 2। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई डेट आपका इंक्लूडेड नहीं है सबसेक्शन 2 में, एंड फ्रॉम एनी लायबिलिटी नॉट इंक्लूडेड अंडर सबसेक्शन 3, उस डिस्चार्ज ऑर्डर में लिखा जाता है किस किस डेट से डिस्चार्ज हो गया।
जो बाकी डेट है उससे डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। द डिस्चार्ज ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री। एनी डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debts। मतलब अगर मान लो कोई को बोरोवर है तो को बोरोवर उससे डिस्चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। जिसके फेवर में डिस्चार्ज ऑर्डर हुआ वो सिर्फ वही डिस्चार्ज होगा। 93, the resolution personnel shall perform its functions and duties in compliance with the code of conduct provided under section 208। तो 208 में कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। तो ये था हमारा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अब हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, अभी तो काफी टाइम है हमारे पास, ठीक है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, अब जैसा हमने देखा कि भाई अभी फ्रेश स्टार्ट के तो रूल्स रेगुलेशंस आए नहीं है, है ना। और इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म ने भी अगर डायरेक्टली लोन लिया हुआ है तो उसके भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं आए हैं। अच्छा, एक आदमी ने मान लो लोन ले लिया बैंक से, ठीक है। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने बैंक से लोन ले लिया, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक क्या करेगा? यहां पर तो रूल्स रेगुलेशंस आए नहीं है, सिर्फ पर्सनल गारंटर के लिए आए हैं। पर्सनल गारंटर नहीं है, उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया लोन और वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या ऑप्शन है बैंकर के पास? जब वो सरफेसी के अंदर जा सकता है अगर सिक्योर्ड है। हाँ, वेरी करेक्ट। अगर सिक्योर, या पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लोन उसने लिया किससे है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो आरडीबी एक्ट में आ सकता है। अगर सिक्योर्ड है तो सरफेसी में एक्शन हो सकता है। अगर सिक्योर्ड नहीं भी है तो भी डीआरटी में एप्लीकेशन लग सकती है, अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया, ये किसी इंडिविजुअल से ले रखा है दूसरे से, तो वो फिर कमर्शियल कोर्ट्स में जाता है। आजकल कमर्शियल कोर्ट्स भी बन गए हैं, और कमर्शियल कोर्ट नहीं है तो उस पर सिविल कोर्ट। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। यहां पर दो आदमी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, डेटर या क्रेडिटर। और डेटर की डेफिनेशन क्या है? डेटर की डेफिनेशन दे रखी है, डेटर इंक्लूड्स ए जजमेंट डेटर, और यहां पर गारंटर दे दिया। गारंटर की डेफिनेशन अगर आप देखो रूल्स में, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स में, गारंटर मींस ए डेटर हु इज ए पर्सनल गारंटर टू ए कॉर्पोरेट डेटर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom गारंटी हैज बीन इन्वोक्ड बाय द क्रेडिटर एंड रिमेन्स अनपेड इन फुल, और ठीक है। तो ये गारंटर की डेफिनेशन दे रखी है। चलिए, ए डेटर हु कमिट्स ए डिफॉल्ट, यहां पर भी डिफॉल्ट जरूरी है। ये खुद भी अप्लाई कर सकता है, आरपी के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है फॉर इनिशिएटिंग the insolvency resolution process by submitting an application. Where the debtor is a partner of a firm, such debtor shall not apply under this chapter to the adjudicating authority in respect of the firm unless all or majority of the partners of the firm file the application jointly। ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दे रखी है, तो क्या होगा? या तो सारे पार्टनर्स या majority of the partners have to file the application jointly। ठीक है। ऑल क्यों लिखा? ऑल और मेजोरिटी है, ऑल इसलिए लिख दिया, मान लो दो ही पार्टनर है तो दोनों को ही करना, फिर तो वो मेजोरिटी की बात ही नहीं है ना। या फिर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स व्हिच आर नॉट एक्सक्लूडेड डेट्स। ठीक है, एक तो एक्सक्लूडेड डेट नहीं होने चाहिए ये। A debtor shall not be entitled to make an application under subsection 1 if he is an undischarged bankrupt। Undischarged bankrupt क्या है? मतलब bankruptcy order हो चुका है लेकिन अभी डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं हुआ, या इफ इज अंडरगोइंग ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, अब उसके केस में फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चल रहा तो भी नहीं एप्लीकेशन लगा सकता, या अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी या अंडरगोइंग ए बैंक्रप्सी प्रोसेस। तो फ्रेश स्टार्ट पहले से चल रहा है, इंसॉल्वेंसी पहले से चल रही है, बैंक्रप्सी पहले से चल रही है, या वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है, तो उस केस में ये एप्लीकेशन नहीं लगा पाएगा। ठीक है। ए डेटर शेल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 इफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर हैज बीन एडमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन। मतलब एक एप्लीकेशन पहले से ही एडमिटेड है, ठीक है, 12 महीने के अंदर अंदर, तो फिर दूसरी एप्लीकेशन नहीं लग सकती।
The application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied with such fees as may be prescribed. तो यहां पर आपके रूल्स आ गए हैं पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर। तो इसमें रूल 6 है, रूल 10 और रूल 11। तो रूल 6, रूल 10 और रूल 11 क्या कहता है? अगर हम रूल्स पर जाएं तो रूल 6 बोलता है आपका एप्लीकेशन बाय गारंटर, ठीक है। रूल 7 बोलता है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। रूल 10 बोलता है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और रूल 11 है आपका विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो विड्रॉल का भी प्रोविजन है। The adjudicating authority may permit withdrawal of the application submitted under Rule 6 or 7 as the case may be before its admission, on a request made by the applicant, after its admission, on the request made by the applicant, if 90% of the creditors agree to such withdrawal, ठीक है। ये है, चलिए आगे चलते हैं। 95, section 95, application by creditor to initiate insolvency resolution process. A creditor may apply either by himself or jointly. अब यहां पर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में वो क्या कहता है कि भाई क्रेडिटर जो है वो सिंगली ही अप्लाई करना पड़ेगा उसको, है ना। क्यों? वहां फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर अलग अलग प्रोविजन है। यहां पर क्या है? क्रेडिटर ही है सिर्फ। यहां फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर वाला डिस्टिंक्शन नहीं है। तो चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, एप्लीकेशन एक ही है दोनों के लिए, ठीक है। एंड ए क्रेडिटर में अप्लाई, और डिमांड नोटिस सबको देना है, ये भी है ना। वहां थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है ना कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो डिमांड नोटिस देना नहीं है। यहां पर क्योंकि वर्ड क्रेडिटर यूज किया गया तो सारे केसेस में डिमांड नोटिस देना है। A creditor may apply either by himself or jointly with other creditors or through RP for initiating an insolvency resolution process, ठीक है। A creditor may apply under subsection 1 in relation to any partnership debt owed to him for initiating an insolvency resolution process। अब मान लो पार्टनरशिप फर्म का कोई डेट है, तो उस केस में किसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे? या तो एनी वन और मोर पार्टनर्स। मान लो फर्म में 3 पार्टनर है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टनर के अगेंस्ट में ये एप्लीकेशन लगा दे, 2 के अगेंस्ट में लगा दे, सबके अगेंस्ट में लगा दे, या फर्म के अगेंस्ट। ये उसकी चॉइस है क्रेडिटर की। वो ये नहीं कह सकता कि भाई 3 पार्टनर है, तीनों के अगेंस्ट में क्यों नहीं लगाई। वो कहेगा उनके पास कुछ है ही नहीं, मैं क्यों लगाऊं उनके अगेंस्ट, ठीक है। वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अगेंस्ट वन पार्टनर इन ए फर्म, मान लो एक पार्टनर के अगेंस्ट में लगा दी, तो क्या होगा? Any other application against another partner in the same firm shall be presented in or transferred to the adjudicating authority। मान लो बाद में वो सोचता है कि भाई दूसरे के अगेंस्ट में भी लगा दो, तो फिर वो भी वहीं पर ही लग जाएगी, फर्स्ट वाली जहां पर लगी वहीं पर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। एंड सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे गिव सच डायरेक्शंस फॉर कंसोलिडेटिंग द प्रोसीडिंग्स अंडर द एप्लीकेशन एज ए थिंग, ठीक है। और एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या डिटेल्स जानी है? एप्लीकेशन के अंदर जो डिटेल्स क्या जानी? डेट ओड बाय द डेटर और द क्रेडिटर, बाय द डेटर टू द क्रेडिटर और क्रेडिटर्स सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। भाई इसको दूसरे क्रेडिटर का तो पता नहीं है। क्रेडिटर तो जो एप्लीकेशन लगाएगा उसको तो अपने डेट का ही पता होगा ना, या अगर ज्वाइंटली लगाएंगे तो ज्वाइंटली में जितने क्रेडिटर उनका पता होगा। अब इसमें क्या कोई परसेंटेज है क्या? इतने परसेंट होने चाहिए? जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर में तो क्या होता है, सेक्शन 7 में क्या बोलता है वो? 10% वाली बात करता है, या 100, है ना। तो ऐसी भी कोई कंडीशन है क्या यहाँ पर? जैसे वहां तो कंडीशन है ना। सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 बोलता है नॉट लेस देन 100 और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज। यहाँ पर भी ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि 50% क्रेडिटर लगानी है, 16 लगानी है? कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं। चाहे एक क्रेडिटर लगा दे, 2 क्रेडिटर लगा दे, और डिफॉल्ट आपका 1000 रुपीज है, ठीक है। The debts owed by the debtor to the creditor or creditors submitting the application for insolvency resolution process as on the date of application. Failure by the debtor
टू पे द डेट विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये डिमांड नोटिस भी देना है यहाँ पर, और पीरियड कितना है 14 डेज, जबकि सीआईआरपी में पीरियड आपका 10 डेज है, यहाँ पर पीरियड कितना है 14 डेज। और इसका डिमांड नोटिस का फॉर्मेट भी है ना। फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस इनवॉइस फॉर्म नंबर 3, और फॉर्म 4 है फॉर्म ऑफ नोटिस विद विच इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट इज टू बी अटैच। तो फॉर्म 3 है, फॉर्म नंबर 4 है। एक मिनट, सॉरी, ये जो है, ये जो मैंने दूसरा देख लिया, ये आपका ये यहाँ पर है, वो कॉर्पोरेट प्रोसेस वाला देख रहा था। ये इसमें फॉर्म बी है एक्चुअली, फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस। ठीक है, तो फॉर्म बी डिमांड नोटिस के लिए है। फॉर्म ए जो है एप्लीकेशन बाय डेटर है, और फॉर्म सी है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। ठीक है, चलिए। तो डेट शोड failure by the debtor to pay the debt within a period of 14 days and relevant evidence of such default or non-payment of debt. The creditor shall also provide a copy of the application under subsection 1 to the debtor. ठीक है, और जो एप्लीकेशन रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकॉम्प्लीड बाय सच फीस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो इसमें रूल दे रखे हैं, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है? रूल नंबर 7, अगर हम रूल नंबर 7 देखें तो रूल नंबर 7 बोलता है एप्लीकेशन बाई क्रेडिटर। तो क्रेडिटर पहले डिमांड नोटिस देगा फॉर्म बी के अंदर, एप्लीकेशन देगा फॉर्म सी के अंदर, फीस है 2000 रुपीज। ठीक है, और क्रेडिटर ने कॉपी देनी किसको? गारंटर को और कॉर्पोरेट डेटर। एंड इन केस ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन द क्रेडिटर्स में नॉमिनेट वन अमंग्स देमसेल्व्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। तो मान लीजिए 4 क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई, तो दोनों इनमें से एक को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और रूल नंबर 10 क्या बोलता है? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, और 11 बोलता है आपका विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए। द डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी सच एज में बी स्पेसिफाइड। उसके बाद में इंटरिम मॉरिटोरियम। इंटरिम मॉरिटोरियम सेम है जो हमने प्रेस स्टार्ट में पढ़ा। ठीक है, चाहे एप्लीकेशन आपकी 94 में लगी हो या 95 में लगी हो, इंटरिम मॉरिटोरियम किसके लग जाएगा? इन रिलेशन टू ऑल द डेट्स and shall cease to have effect on the date of admission of such application. ठीक है, during the interim moratorium period any legal action or proceeding pending in respect of any debt shall be deemed to have been stayed and the creditors of the debtor shall not initiate any legal action or proceeding in respect of any debt. ठीक है, नया शुरू नहीं कर सकते, पुराने वाला स्टे हो जाएगा। where the application has been made in relation to a firm। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फर्म के अगेंस्ट में लगी है तो क्या होगा? द इंटायर मोरेटोरियम शैल ऑपरेट अगेंस्ट ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई कि भाई इन ट्रांजेक्शन्स पर नहीं लगेगा। 97 अपॉइंटमेंट। अब हमने क्या पढ़ा कि दोनों ही केस में अपने आप भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, डेटर भी एप्लीकेशन खुद लगा सकता है, क्रेडिटर भी खुद लगा सकता है। अब दो ही बातें होंगी, या तो उसने आरपी का नाम दिया होगा या नहीं दिया होगा। अगर आरपी का नाम दिया हुआ है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या देखना है? कोई कोई डिसिप्लिनरी पेंड नहीं है। ठीक है, और द बोर्ड शैल विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ डायरेक्शंस कम्युनिकेट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किससे कंफर्म कर रहा है? ये एडजुडिकेट बोर्ड से। ठीक है, बोर्ड 7 दिन के अंदर रिवर्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है इकलौता, सेक्शन 97, जहां बोर्ड भी 7 दिन के अंदर रिवर्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली सब जगह बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसीलिए 7 days को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द बोर्ड शेयर विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ डायरेक्शंस कम्युनिकेट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्या कि या तो कंफर्म कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा? वो नॉमिनेट कर देगा। ठीक, और वो अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ उसको कॉपी दे देंगे ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि पहले तो वो था नहीं, है ना। एप्लीकेशन तो खुद डेटर या क्रेडिटर लगाई थी,
तो जो भी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है वो आरपी को दे देंगे। ठीक। 98, 98 में डेटर या क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा सकते हैं एंड दे में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन के अंदर बोर्ड को लिखेगा, बोर्ड अपना रिवर्ट करेगा 10 दिन के अंदर। ठीक है। चलिए, without prejudice to the provisions contained in subsection 1, the creditors may apply to the adjudicating authority for replacement of RP where it has been decided in the meeting of the creditors to replace the RP with a new RP for implementation of the repayment plan। ऐसा भी हो सकता है कि आरपी ने पूरा प्रोसेस कंक्लूड कर दिया लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लिए वो दूसरा आरपी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। वही होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगी, बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा, बस यही है। ठीक है, सेम है। सिर्फ 97 ऐसा सेक्शन है जहां बोर्ड 7 डेज के अंदर रिवर्ट करता, बाकी सब जगह 10 दिन के अंदर रिवर्ट करा। ठीक है। सेक्शन 99, यहां पर भी रिपोर्ट सबमिट करनी, जैसे वहां रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ना फ्रेश स्टार्ट में, ऐसे यहां पर भी रिपोर्ट सबमिट करनी है। वो पीरियड सेम है, विद इन 10 डेज। ठीक है। वेर द एप्लीकेशन इज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 95। अच्छा ये बताइए कि सेक्शन 94 में, सेक्शन 94 की एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? डेटर लगा रहा है। तो जब डेटर एप्लीकेशन लगा रहा है तो क्या वो डिक्लेरेशन देगा? कुछ डिक्लेरेशन देगा 94 सब सेक्शन 4 में। सेक्शन 94 सब सेक्शन 4 है ना, डेटर शेल नॉट बी एंटाइल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन इफ इज एन अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट। ये कौन बताएगा? डेटर ही तो बताएगा ना। डेटर खुद एप्लीकेशन लगा रहा है। ठीक है। तो वो एक एफिडेविट देगा जिसमें ये सारी बातें लिखेगा कि आई एम नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट, आई एम नॉट अंडरगोइंग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, आई एम नॉट अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और बैंकरप्सी प्रोसेस। ठीक है। यस। चलिए 99, the RP shall examine the application referred to in 94 or 95 as the case may be within 10 days of its appointment and submit a report to the adjudicating authority recommending for approval or rejection। ठीक है। Where the application has been filed under section 95, 95 में कौन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है? क्रेडिटर। ग्रेट। ठीक है। The RP may require the debtor to prove repayment of the debt claimed as unpaid by the creditor। अब देखो ऐसा है कि एप्लीकेशन तो लगाई क्रेडिटर ने, डेटर से भी एक बार पूछ तो लेगा ना रिपोर्ट देने से पहले कि भाई ऐसा तो नहीं तुमने पेमेंट कर दिया हो। अगर तुमने पेमेंट कर दिया तो दे दो, एविडेंस दे दो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या एविडेंस ऑफ एनकैशमेंट ऑफ चेक या साइंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। वेयर द डेट फॉर विच एन एप्लीकेशन इज बिन फाइल्ड बाई क्रेडिटर इज रजिस्टर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, द डेटर शेल नॉट बी एंटाइल्ड टू डिस्प्यूट द वैलिडिटी ऑफ सच डेट। तो अगर आयु के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, डेट, तो फिर डेटर इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो देने ही नहीं, क्योंकि आयु क्या करता है? आयु के अगर हम प्रोविजंस देखेंगे तो आयु कंफर्म करता है, उससे 3 बार उसको नोटिस भेजता है डेटर को डिफॉल्ट के केस में, है ना, कि भाई तुमने ये, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि आपने ये डेट लिया और डिफॉल्ट हुआ है, तो आप बताओ आपने ये डेट ले रखा है या नहीं ले रखा। तो 3 बातें होगी, या तो वो कहेगा ले रखा है, ले रखा है तो ग्रीन मार्क, नहीं ले रखा रेड मार्क, कोई जवाब नहीं देता 3 बार येलो मार्क। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग एन एप्लीकेशन the RP may seek such further information or explanation in connection with the application as may be required by the debtor from the debtor or creditor or any other person। ठीक है। और जिससे भी पूछे उसको 7 दिन के अंदर जवाब देना है। ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या एग्जामिन कर लेगा और असर्टन कर लेगा दैट द एप्लीकेशन सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन सेक्शन 94 और 95। ठीक है। द एप्लीकेंट हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड गिवन एक्सप्लेनेशन सॉट बाय द आरपी। ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन अब 2 बातें होगी, या तो रिकमेंड करेगा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। ठीक है। Where the RP finds that the debtor is eligible for a fresh start under chapter 2। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रेश स्टार्ट के लिए एलिजिबल हो, तो फिर आरपी क्या करेगा? एक रिपोर्ट करेगा कि भैया ये जो एप्लीकेशन है 94 वाली, इसको 81 की एप्लीकेशन मान लिया जाए। ठीक है। द आरपी शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर रिकमेंडिंग द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है।
द आरपी शैल गिव ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द डेटर और द क्रेडिटर एट द केस में भी। अगर डेटर ने एप्लीकेशन लगाई तो क्रेडिटर को कॉपी दे देगा, अगर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई तो डेटर को दे देगा। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 5, इसको आपको रेगुलेशन नंबर 5 के साथ पढ़ना है। रेगुलेशन नंबर 5 क्या वो कहता है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा रेगुलेशन नंबर 5। रेगुलेशन 5 बोलता है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। The resolution portal shall preserve a physical as well as electronic copy of the records relating to resolution process as may be communicated by the board in consultation with insolvency professional agencies। और यहाँ डेट काउंसलिंग वाला भी प्रोविजन है कि डेट काउंसलिंग इन रिलेशन टू रेजोल्यूशन प्रोसेस may be provided to a guarantor by such person as may be required by the board or the central government। ठीक है। क्या होता है कई बार ना उसको कह देते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आप डेट काउंसलिंग चाहते हो तो डेट काउंसलिंग भी इनको देते हैं। एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, सेक्शन 100। सेक्शन 100 बड़ा खतरनाक सेक्शन है। 100 क्या होता है? 100 पुलिस का नंबर है। 100 से सीधे ही आपकी बैंक्रप्सी भी स्टार्ट हो सकती है अगर उसको लग रहा है। 100 सबसेक्शन 4 अगर हम देखें, ठीक है, 100 सबसेक्शन 1 तो ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 दिन है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट कि वो एडमिट करे या रिजेक्ट करे। सेकंड, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट कर लेती है तो क्या होगा? इट मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द आरपी इशू इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस। यहां पर भी इस स्टेज पर भी नेगोशिएशन हो सकती है कि भाई रीपेमेंट प्लान वगैरह की जरूरत ही ना पड़े, भाई आप अपने आप में नेगोशिएट कर लो फॉर अराइविंग एट ए रीपेमेंट प्लान। ठीक है। The adjudicating authority shall provide a copy of the order passed under subsection 1 along with the report of the RP and the application referred to in 95, 94 or 95 to the creditors within 7 days from the date of the said order। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई 94 या 95 की, आरपी ने रिपोर्ट दे दी कि भाई ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और एप्लीकेशन में डाली गई है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स or the RP, the order under subsection 1 shall record that the creditor is entitled to file for a bankruptcy order। तो यहीं पे सीधी उसकी bankruptcy स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। सेक्शन 101, when the application is admitted under section 100 moratorium हो जाएगा। ठीक है। और मोरेटोरियम में क्या होगा? कोई भी पेंडिंग लीगल एक्शन या नहीं हो सकता और नया आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। The debtor shall not transfer, alienate, encumber or dispose of any of his assets or his legal rights or beneficial interest therein। ठीक है। तो ये कोई भी अपने एसेट्स वगैरह को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर अगर एप्लीकेशन फर्म के अगेंस्ट में एडमिट हुई है तो ये मोरेटोरियम जो है सारे ही पार्टनर्स पर लगेगा। ठीक है। The provisions of this section shall not apply to such transactions as may be। सेक्शन 102, 102 कल कर लेते हैं, है ना। सेक्शन 101 तक हम कर लेते हैं आज। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कल भी हम क्लास करेंगे और कल सेक्शन 102 कर लेंगे। ठीक है जी।